So question number 1 of KVPY exam essay solution of 2019 paper. So question 1 is what? Your let ABC be an equilateral triangle with side length A. Let R and small r denotes the radii of the circumference and the inner circle of triangle ABC respectively. Then as a function of A, the ratio of R upon R. Option A slightly strictly increases, option B strictly decreases, option C remains constant, or option D strictly increases for A is less than 1 and strictly decreases for A greater than 1. So the answer of this question will be option number C, that is it remains constant. Now let's see कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल देखेंगे। एक ट्राइंगल गाइस, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, लेटर से यहाँ पे एक सर्कम सेंटर दिया है, सपोज लेटर से दिस इज पी, तो ये इसको कैपिटल आर और आर में डिवाइड करेगा। और आपको पता है कैपिटल आर और आर का सर्कम सेंटर का जो भी रेशियो होता है वो ऑलवेज 2:1 होता है, यानी इससे ए की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स दिस आर बाय आर रेशियो इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसके इंक्रीज होने से और डिक्रीज होने से ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट बी बी अ नॉन zero real number. Suppose the quadratic equation 2x square plus bx plus 1 by b equals to 0 has two distinct real roots. Then option A is b plus 1 by b is greater than 5 by 2. Option B is b plus 1 by b which is less than 5 by 2. Option C is b square minus 3b which is greater than minus 2. And your option D is b square plus 1 by b square which is less than 4. So guys, here option C is the correct answer, which is b square minus 3b is greater than minus 2. So देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो क्या दे रखी है गाइज, इसमें हमें दे रखा है कि दैट इट हैज टू डिस्टिंक्ट real roots. So condition is what? Here you can say that your condition is here what is the condition? D is greater than 0. So you can easily write that your D is greater than 0. Okay. So if your D is greater than 0, so you can say that your b square minus 8 upon b which is greater than 0. Or you can say that your b cube minus 8 upon b is greater than 0. Or you can also write it as b minus 2 and b square plus 2b plus 4 upon b which is greater than 0. So here you can conclude that this b minus 2 upon b is greater than 0. This b minus 2 upon b is greater than 0, or you can conclude that either b is greater than 2 or this b is less than 0. So now you can check that this b is greater than 0 or b is less than 0 lies in which interval or which interval it is satisfying. So option A, यहाँ से आप देख सकते हैं कि option A बिल्कुल भी satisfy नहीं कर रहा, just because if b is negative then ये fulfill नहीं करेगा इस condition को, तो option A is wrong. Option B same condition, ये भी wrong हो जाएगा हमारा. Option C अगर हम check करें, so option C is what? Option C is your b square minus 3b which is greater than minus 2. So यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, ये एक फैक्टर बन जाएगा b minus 1 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा b minus 2. और you can say that b is greater than 2 or b is less than 1. Okay. Now you can easily conclude that this condition fulfills और b is greater than 2 ये इस condition को satisfy कर रहा है, ये इस interval में भी lie कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि option C is the correct answer. Question number 3. Let px is equals to x square plus ax plus b having two distinct real roots where a comma b are the real numbers. Define gx is equals to px square for all real numbers x. Then which of the following statements are true? This is gx is equals to px q. Okay, so your first statement is g has exactly two distinct real roots. Option second, g has more than two distinct real roots. Option third, there exists a real number alpha such that your gx is greater than or equal to alpha for all real x.
So option A is what? Only first is correct. Option B is what? Only first and third is correct. Option C is what? Only second is correct. And option D is what? Only second and third is correct. So guys, answer of this will be option number B, that is only first and third will be correct. Okay, so let's see how to approach this question. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो हमारा जो ये ax स्क्वायर है, so is ax square is greater than 4b. ax square is greater than 4b. यहाँ के इसके टू रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा. ओके, एंड यहाँ पर आपकी कंडीशन दे रखी है कि px क्यूब gx इज इक्वल टू px क्यूब हो जाएगा. अगर मैं px का क्यूब कर दूं तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी? हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ से क्या हो जाएगी? मेरे पास आ जाएगी ये x की पावर 6 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे पास b आ जाएगा. ठीक है, सो ये कंडीशन फुलफिल हो गई. यहाँ से अगर अब मैं देखूं तो मेरा जो एक्स क्यूब है वो किसके बराबर आना चाहिए? अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो एक्स क्यूब या तो अल्फा के बराबर होगा और एक्स क्यूब एक बीटा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो जो मेरा पी अल्फा होगा वो क्या आना चाहिए? पी अल्फा यहाँ पे मेरा 0 हो जाए और जो मेरा पी बीटा है वो मेरा 0 हो जाए. तो मेरा जो जी एक्स फंक्शन है वो क्या है? एक्चुअल में वो दे रखा है मेरी कंडीशन पी एक्स क्यूब दे रखा है मुझे. ठीक है, तो अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये कब 0 होगा? जब ये जो अंदर ये जो पी एक्स क्यूब है, ये जो वैल्यू है मेरी, ये अल्फा के बराबर हो जाएगा. जब ये पी अल्फा के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी 0 हो जाएगी. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए या तो एक ग्राफ बना के अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ सपोज, सो दिस इज माई ग्राफ. तो ये अल्फा वैल्यू को कितनी बार कट करेगा, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अल्फा को और ये बीटा को यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर पा रहा है. सिंगल यूनिक पॉइंट पे ये कट कर रहा है ग्राफ को. और हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एक्स क्यूब है वो अगर अल्फा है और ये जो मेरा एक्स क्यूब है वो अगर मेरा बीटा है, तो यहाँ पर अगर मैं इमेजिन करके सोचूं, गाइज आप सोचो कि अगर आपका ये जो ग्राफ है वो एक्स और वाई को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अल्फा को भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और बीटा को भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि दैट एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू माई x1 cube will be equal to alpha and your x2 cube will be equal to beta. यहां तक की बात आई होप आपको समझ आ गई होगी. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सो जो हमारा gx1 हो जाएगा, यहां से अगर मैं देखूं ये कि मेरी जो gx1 की वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. और मेरी जो gx2 की वैल्यू आएगी वो भी गाइस क्या हो जाएगी? 0. और अगर आप यहाँ पे ग्राफ से अगर देखना चाहें तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ अल्फा की आएगी वो अल्फा से कुछ ऊपर ही बनेगी. तो ऊपर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी. दैट्स वाई जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज जी हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दैट इज अल्फा और बीटा. तो ये आपके दो पॉइंट्स पे कट करें आप यहाँ देख सकते हैं. तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है. और ऑप्शन थर्ड इज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर अल्फा सच दैट जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा. तो ये अल्फा से सारी वैल्यूज ऊपर आ रही है यानी बड़ी आ रही है उसके और इक्वल आएंगी. तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. लेट n is greater than equal to 1 be an arithmetic progression with first term is 2 and the common difference is d. Let mn be the average of the first n terms and the sum of summation 10 n is equals to 1 to 10 mn is what? Option A is 110, option B is 335, option C is 770 and option D is 1100. So गाइज देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे. यहाँ पे आपको एक एपी दिख रही है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है. फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है दोस्तों? फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 2 और योर कॉमन डिफरेंस d विल बी इक्वल टू 4. सो यहाँ से अगर हम एपी फाइंड करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? mn इज इक्वल टू योर a1 प्लस a2 प्लस अप टू ये an तक हो जाएगा अपॉन n. ओके, सो यहाँ पर अगर हम एपी लगाएं तो हमारी एपी क्या हो जाएगी? n/2 विच इज इक्वल टू your a which is 2 plus n minus 1 into common difference 4. okay, and this will be equal to upon n. so n से n cancel हो जाएगा हमारा, ये 2 से यहाँ पे 2 cancel हो गया. okay, so what will I get here? so यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2n
प्लस 2 माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो जो हमारी mn की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2n आ जाएगी। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या निकालना था, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 10, यानी 1 से 10 तक की सीरीज का सम, दोस्तों आपको पता ही होगा 1 से 10 तक की सीरीज का सम कितना होता है 1 1 0। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, so question number 5, in a triangle ABC, angle BAC is equals to 90 degree. Your AD is the altitude from A onto BC, and you have to draw DE which is perpendicular to AC and your DF perpendicular to AB. Now let us suppose AB is equals to 15 and BC equals to 25 is given to you. Then you have to find the length of EF, which is equal to what? Your option A is 12, option B is 10, option C is 5 by root 3 and option D is 5 by root 5. So guys, here option A is the correct answer. So आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है ABC। सो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेरा ट्राइंगल बन रहा है ABC, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर ABC, यहाँ एक ट्राइंगल बनाया विच इज BAC मीन्स एंगल इज 90 डिग्री। आगे कंडीशन दे रखी है AD एक ऑल्टीट्यूड है BC पे, तो दिस इज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है, तो ये एक ऑल्टीट्यूड बना लिया। इसके बाद कंडीशन क्या है कि जो DE है वो परपेंडिकुलर है किसके, हमारे DE परपेंडिकुलर दे रखा है AC के, ठीक है। तो यहाँ से हमने DE बना लिया और वहीं पर DF भी परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा किसके, AB के, तो यहाँ पे DF बन गया, ठीक है। अब हम गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं यहाँ से। अगर हमें गिवन कंडीशन देखी जाए तो BAC मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा AD है विच इज परपेंडिकुलर टू BC, और योर DF और DE, D is perpendicular to AC, D is your perpendicular to AC and your DF is perpendicular to this AB. Okay, these are the conditions. So यहाँ से अगर ये कंडीशन मेरे पास आ रही है तो मैं इजीली कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो मेरा EDFA है वो क्या हो जाएगा, वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, इज अ रेक्टेंगल। यहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाल लिया। अगर ये मेरा रेक्टेंगल इक्वल है तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि इसके जो डायगोनल्स है दैट इज माय AD इक्वल्स टू EF हो जाएगा, तो डायगोनल्स भी इसके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से और मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि यहाँ से मुझे पता है कि जो मेरा AB है वो मेरा 15 है और जो मेरा BC दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 25 एंड दिस लेंथ इज योर 15। ओके, यहाँ से अब हम ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि BC आपका ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ योर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, योर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली। हमें AB और BC की वैल्यू पता है तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। AB 15 का स्क्वायर हो गया और BC मेरा 25 का स्क्वायर हो गया। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरी AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 20। नाउ अगर मैं ट्राइंगल इसमें आपके BD की बात करूं तो ये जो मेरा BD हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अगर मेरा ये पूरा BC 25 है तो BD क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स और CD क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ADB की, इन ट्राइंगल ADB की, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा AD स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा AD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये मेरा हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं इस कंडीशन को लिख सकती हूँ। अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं, मेरा ट्राइंगल ADC, अगर मैं इस दूसरे ट्राइंगल ADC की बात करूं तो यहाँ से मेरा AD क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा AD इक्वल आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं ये कंडीशन लिख सकती हूँ। यहाँ पर अब मुझे दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। सो आफ्टर इक्वेटिंग दी वैल्यूज, अब अगर इक्वेट करती हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको कि आफ्टर इक्वेटिंग दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये मेरे पास हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 225 और माइनस का ये अगर मैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, ओके, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा मेरे 400 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से हम कर सकते हैं, x और x को हम एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो 50x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो 50x की वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी गाइस, मेरी 50x की वैल्यू यहाँ पर 800 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर मैं निकालू तो मेरा x कितना हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा 16। और x एक्चुअली में किसके इक्वल है, x मेरा इक्वल है इस CD के, ठीक है। तो अगर CD मेरा आ गया 16 तो मेरा BD क्या आ जाएगा, BD is equal to 25 minus 16 which is equal to what, which is equal to this 9, ठीक है। आई होप यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा BD आ रहा है वो क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू मेरी 9 हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगर अब मैं बात करूं इन ट्राइंगल ADC की, अगर मैं मेरी बात करूं कि अब मैं इस इन ट्राइंगल ADC की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ADC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD का स्क्वायर, ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, इक्वल टू यहाँ पर मेरा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 400 माइनस यहाँ पे मेरा आ जाएगा 256। और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 144, विच इज इक्वल टू व्हाट, कि मेरा AD जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मुझे निकालना क्या था, मुझे लेंथ निकालनी थी यहाँ पर। तो जो मेरा EF, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा EF माइनस AD हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरी लेंथ EF की क्या हो जाएगी, EF AD के बराबर है, क्योंकि ये डायगोनल्स है हमारे रेक्टेंगल के। सो EF बराबर AD बराबर 12 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 is what the sides ABC of a triangle satisfying the relation is what, C square is equals to 2AB and A square plus C square is equals to 3B square. Then the measure of angle BAC in degrees you have to find. Option A is 30, option B is 45 degree, option C is 60 degree and option D is 90 degree. So guys, answer B is the correct answer, which is 45 degree. So देखते हैं कि आंसर किस तरीके से आया। So the given condition is what, हमारे पास जो given condition है वो क्या है दोस्तों, हमारे पास जो हमारी given condition है वो condition है हमारी C square is equals to 2AB, ठीक है। ये हमारी एक given condition है। एंड द थिंग इज कि ये जो रिलेशन है हमारे पास एक और, A square plus C square which is equal to 3B square. So अगर मैं इस C square is equals to 2AB की जो कंडीशन है अगर इस इक्वेशन में पुट कर दो तो what I'll get, A square plus 2AB is equals to 3B square, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी। यहां से अब मुझे पता है मैं इसको अगर क्वाड्रेटिक बना देती हूँ तो क्वाड्रेटिक बन के क्या हो जाएगी, A square, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस 3AB माइनस AB एंड विच इज माइनस 3B square equals to 0। इस तरीके से मैं बना सकती हूँ। तो मेरे यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा A प्लस, यहाँ पे मेरा फैक्टर बन जाएगा 3B और ये माइनस B इज इक्वल्स टू A प्लस 3B इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ गाइज, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक फैक्टर बन गया A माइनस B एंड दूसरा फैक्टर बन गया A प्लस 3B। नाउ यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं हो सकती बिकॉज A इज इक्वल टू माइनस 3B हो जाएगा। ये मैं बोल सकती हूँ कि जो A की वैल्यू है वो मेरी B के बराबर आ जाएगी। यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं कि हम ये कंडीशन अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो मेरा जो C स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड C इज इक्वल्स टू व्हाट, योर A रूट 2। फाइन। सो जो ये ट्राइंगल जो बन रहा है मेरा, अगर A इक्वल्स टू B आ गया, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरे साइड्स है बोथ दी साइड्स वो इक्वल है। तो यानी ये ट्राइंगल क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो एक ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे इस तरीके से, बिकॉज आई हैव टू फाइंड BAC मेजर, ओके। सो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज B। तो ये मेरा A हो जाएगा, ये भी मेरा A हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा A रूट 2। सो यहाँ पे मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो बचे हुए रिमेनिंग एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये भी 45 और ये भी 45। ना क्वेश्चन में पूछा क्या गया, मुझे क्या फाइंड करना है, दिस एंगल BAC। तो ये BAC कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरा ये एंगल है
BAC वो कितना आ रहा है, वो मेरा आ रहा है 45 डिग्री। क्योंकि मेरी जो ट्राइंगल की साइड्स थी वो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या बन गई थी नाउ, यहाँ से मैंने देखा कि जो मेरी कंडीशन थी A इज इक्वल टू बी आई थी, यहाँ से साइड्स क्या बन गई थी, एक A दूसरी भी A और तीसरी A√2। तो ये किस ट्राइंगल की साइड्स हो गई, ये मेरे ट्राइंगल की साइड हो गई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ओके नाउ जो मेरा एंगल आया वो 45 डिग्री होगा, सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज 45 डिग्री। ओके so question number 7 is what, let n be the least positive integer such that whenever a non-zero digit c is written after the last digit of your n, so the resulting number is divisible by c. So then the sum of digit of n is, option A is 9, option B is 18, option C is 27 and option D is 36. So guys इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक कि ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उस पर हम एक बार गौर करते हैं जरा। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, n be the least positive integer such that कि whenever a number or digit c, if you have written that whenever a number of a non-zero digit c is written after the last digit of n, so if I am writing this n, okay, after the last digit n, if I have to place this c which is a non-zero digit, so written after the last digit of n, then the resulting number is divisible by c. Okay, so this is my condition. So the least positive integer, my least positive integer will be what, will be least positive integer of this n which is divisible by the digits, or you can say that which is divisible by the digits 1 to 9. Okay, so what we can say the possible number is, so the possible number is what, the possible number is, okay, so your possible number is what, it must be divisible by 9, then 8, then 7 and then 5, okay, into c and this c. Okay, so the number which is divisible by all the digits of 1 to 9, so your number is what, if you have written like 9 into 8 into, this is 7 into 5, these are the numbers which is divisible by all the digits from 1 to 9. Okay, so your number will be what, your number will be equal to your 72, this 9 8 is 72 and this 7 5s are 35, which is equal to what, which is equal to your 2520 and which is equal to your n, and your question says that you have to find the sum of digit of this n. So if you take the sum of these digits, what you will get, you will get simply, if I'll sum 2 plus 5 plus 2 which is equal to 9. So your answer is 9. Option A is the correct answer. Okay. Question number 8. Let x1, x2 up to your x11 be the distinct positive integers. If we replace the largest of these integers by the median of other 10 integers, then option A is what? Option A is the median remains the same. Option B, the mean increases. Option C, the median decreases. And option D, the mean remains the same. Okay, now guys, answer C is the correct answer, and let's see how to get this answer. If these x1, x2 up to is this x1 or this x11 be the distinct positive integer, so I can write it as x1 which is lesser than x2, which is lesser than x3, which is lesser than x4, which is lesser than x5, which is lesser than x6, lesser than x7, lesser than x8, which is lesser than
9 which is lesser than x 10 which is lesser than x 11. Okay, so these are your 11 distinct positive integers, or you have to find the median for that. And median is what you know guys कि median हमारा क्या होता है, median हमारी middle most value होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 values आ रही है, तो middle most value हमारी ये x6 हो जाएगी यहाँ पे. So x6 एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि x6 हमारा median हो जाएगा. बट जो अदर कंडीशन है वो क्या दे रखी है कि अगर मैं रिप्लेस कर दूं मेरा लार्जेस्ट जो इंटीजर है, यहाँ पे मेरा लार्जेस्ट इंटीजर आप देख सकते हैं ये x11 है, अगर मैं इस x11 को ये रिमेनिंग 10 से रिप्लेस कर दूं तो आपका मीडियन क्या बन जाएगा, आपका जो मीडियन बन जाएगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर 10 इवन डिजिट्स है तो मीडियन क्या हो जाता है आपके बीच के मिडिल दो वैल्यूज का डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द मीडियन फॉर योर 10 टर्म्स. ठीक है, ये हमारे 10 टर्म्स का मीडियन हो गया. नाउ द कंडीशन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द मीडियन फॉर 11 टर्म्स, बिकॉज नाउ अब आपके जो 11 टर्म्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो मीडियन है x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 2, ये जो वैल्यू है ये x6 x5 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, बट जो x6 है हमारा उससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि मीडियन है ये, तो वैल्यू जो आएगी इन दोनों के कहीं बीच में ही लाई करेगी. ठीक है, बिकॉज इट इज द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज. और जब हम बात करेंगे कि ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं, इस x11 की जगह अगर मैं इस नई मीडियन को अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस x1 is less than x2 which is less than x3 which is less than x4 which is less than my x5. now x5 के बीच में और x6 के बीच में ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x5 plus x6 divided by 2, then less than x6 less than x7 less than x8 which is less than x9 less than x10. so ये हमारी अब 11 वैल्यूज हो गई, 11 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. तो ये जो वैल्यू हुई मेरी x5 प्लस x6, यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो ये मेरा जो मीडियन होगा, मीडियन की बात करूं वो क्या होगा, इस x11 की वैल्यू से तो कम ही आएगा मेरा, क्योंकि ये वैल्यूज भी मेरी कम ही है. तो जो मेरा नया मीडियन निकल के आया वो क्या हो गया, x5 प्लस x6 विच इज लेसर देन द मीडियन ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, क्योंकि जो फर्स्ट 11 टर्म्स का जो मीडियन था वो क्या था, मेरा x6 था. फर्स्ट 11 टर्म्स का मीडियन मेरा x6 था, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू x6 से भी छोटी आएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इन बिटवीन x5 और x6 आएगी. सो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो माई मीडियन इज डिक्रीजेस. सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 9. Question number 9 says that the number of cubic polynomial px which satisfying p1 equals to 2, p2 equals to 4, p3 equals to 6 and p4 equals to 8 is, option A is 0, option B is 1 and option C is more than 1 but finitely many, and option D is infinitely many. So here option C is more than 1 but finitely many. So option A is correct. Option A is 0. So let's see कि option A 0 किस तरीके से करेक्ट है. तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि रिलेशन हमें दिख रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक रिलेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेरी वैल्यू आ रही है यहाँ पे P1, आप देख सकते हैं कि जो मेरे P1 की वैल्यू है वो मेरे को 2 दे रखी है और P2 जो दे रखा है वो 4 दे रखा है. तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ गाइज कि जो मेरा Px है वो 2x एक रिलेशन फॉलो कर रहा है. बोला जा सकता है या नहीं जा सकता, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो मेरा P1 है वो 2 के बराबर है, P2 4 के बराबर है, P3 6 के बराबर है. तो ये रिलेशन एक बना रहा है कि Px इज इक्वल टू 2x हो जाएगा. और अगर मैं बात करूं कि जो मेरा Px है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे जो रूट्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से फैक्टर बन जाएंगे, x-1 x-2 एंड दिस विल बी इक्वल टू x-3 प्लस ये मेरा 2x आ जाएगा. नाउ अगर आप ऐसे क्रॉस चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गाइज अगर मैं इसको p को 1 करती हूँ तो ये मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी विच इज इक्वल टू अगेन 2x हो जाएगी. अगर 2 रखती हूँ तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, अगेन 2x के बराबर आएगा. 3 रखती हूँ तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और ये मेरा 2x के बराबर आ जाएगा. बट मुझे क्या कंडीशन चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए अगर मैं x को 4 रख दूं गाइज, अगर मैं x को यहाँ पर 4 रख दूं, फाइन. सो अगर x को 4 रखा जाए तो मेरा px क्या हो जाएगा, यहाँ पे p4 की वैल्यू यहाँ पर अगर मैंने x को 4 कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, px 8 हो जाएगा.
सो दिस 8 विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर एक लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू में ले लूंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4 minus 1 3 and 4 minus 2 2 and 4 minus 3 1, which is in this way I can write that lambda into 3 into 2 into 1 plus 8. Okay, so now what I can say, this 8 minus 8 0 हो गया और मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो 6 लैम्डा है वो 0 के बराबर हो जाएगा. बट यहाँ से अगर मैं निकालूं एक रिलेशन तो मेरा क्या रिलेशन आ रहा है कि मेरा लैम्डा 0 हो जाएगा. अगर मेरा लैम्डा 0 हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी कि ये मेरी जो इक्वेशन है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट ही अगर 0 हो जाएगा तो क्या कोई पॉलिनोमियल पॉसिबल होगा क्यूबिक, बिकॉज वो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा फिर आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा. बट यहाँ पर क्या कंडीशन दी कि नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब ये पॉलिनोमियल ही क्यूबिक नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो आने का सवाल ही नहीं उठता. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है कि देयर इज नो सच क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई किसी भी एक चारों में से किसी भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना वो इसको कर रहा, ना वो इसको कर रहा, ना वो इसको कर रहा, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. दैट्स व्हाई योर नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0. सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज 0. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is what? A two-digit number AB bar is called almost prime if one obtains two-digit prime number by changing at most one of its digit A and B. For example, 18 is an almost prime number because 13 is a prime number. Then the number of almost prime of two-digit number is option A 56, option B 75, option C 87 and option D is 90. Here guys, answer D is the correct answer. Let's see कि ये आंसर किस तरीके से है. So condition is what guys, अगर मैं बात करूँ टू डिजिट नंबर की बात करें तो 10 से 20 तक के नंबर्स की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ 21 से 30 तक के नंबर्स की, या फिर मैं बात करूँ 31 से 40 नंबर्स की, या फिर मैं अप टू बात करूँ यहाँ पे 91 से 99 तक के नंबर्स की, तो यहाँ पे एक मैं कंक्लूजन कह सकती हूँ कि यहाँ पर ऑलवेज एटलीस्ट ऑलवेज यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एटलीस्ट एक प्राइम नंबर तो आएगा ही आएगा इनके बीच में, वन प्राइम नंबर बिटवीन देम, एक प्राइम नंबर तो इनके बीच में आएगा ही आएगा. तो अगर मैं बात करूं कि अगर बाय चेंजिंग वन डिजिट all numbers wouldn't be prime number, अगर मैं एक डिजिट चेंज कर दूं so by changing what I can say, so by changing one digit all numbers would be prime number, all numbers would be your prime numbers. Okay, so total or almost prime two digit numbers are, so total almost prime digit numbers are, two digit numbers are what, which is equal to your 90. So your answer 90 is what, your option D is correct, which is 90. Okay, question number 11. Question 11 is what, let P be an interior point of a convex quadrilateral ABCD and your K, L, M and N be the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. If your area PKAN is equals to 25 and your area PLBK is equals to 36 and your area PMDN is equals to 41, then the area PLCM is what? So option A is 20, option B is 29, option C is 52 and option D is 54. So guys, here option C is the correct answer, that is 52. So let's see कि ये किस तरीके से आया हमारे पास. So the condition is what, let P be an interior point of a convex quadrilateral ABCD. So we have to draw the convex polygon first or a convex quadrilateral. So यहाँ पर हम देखिए दिस इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अगर हम ड्रॉ करें सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए बी सी और डी, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम बना लेंगे. दिस इज पॉइंट पी, इसे हम ज्वाइन कर देंगे
यहाँ पे हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। यहाँ पर हमें मिड पॉइंट्स भी दे रखे हैं के, एल, एम और एन रेस्पेक्टिवली साइड्स पे। सो यहाँ पर के दे रखा है, यहाँ पर बी सी पर हमें दे रखा है यहाँ पे एल, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ये से भी हम ज्वाइन कर देंगे सबको। तो यहाँ से ये ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया हमारा और ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। नाउ अब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने फॉर्म कर लिया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये x और x के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा y और y मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं w और w, और इसको हम मान लेते हैं हमारा z और z। नाउ अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, सो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा एरिया है यहाँ पर, मेरा एरिया क्या लिख सकती हूँ, मेरा एरिया जो है पी के ए एन का, वो एरिया क्या दे रखा है मेरा 25 एंड विच इज इक्वल टू व्हाट है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू योर एक्स प्लस जेड, ठीक है। दूसरा अगर मैं एरिया देखूं, मेरा जो एरिया है वो मुझे क्या दे रखा है, पी एल बी के। यहाँ पे पी एल बी के का एरिया मुझे दे रखा है 36 विच इज इक्वल टू व्हाट यार, यहाँ पर एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा ये, ओके। नाउ मैं नेक्स्ट एरिया की बात करूं कि जो मेरा नेक्स्ट एरिया है ऑफ पी एम डी और यहाँ पर पी एम डी एन विच इज इक्वल टू 41 एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे w प्लस जेड के बराबर हो जाएगा मेरा, ठीक है। नाउ जो मेरे को एरिया फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, मुझे एरिया फाइंड करना है, मुझे एरिया निकालना है पी एल सी एम का, पी एल सी एम का एरिया मुझे फाइंड करना है विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू योर y प्लस w। सो दीज ऑल आर 4 कंडीशंस। अगर मैं इन तीनों और चारों कंडीशंस को ऐड, अगर सिर्फ सेकेंड और थर्ड को अगर मैं ऐड करूं और उसके बाद मैं इसको फर्स्ट से माइनस कर दूं, देन व्हाट शुड आई गेट, ठीक है। सो देखते हैं हम माइनस करके कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए कंडीशन जो है, हमने यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 मान लिया, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इफ आई ऐड 2 plus 3, then I subtract first equation from that. So what should I get here? I can write this is x plus y plus w plus z minus x minus z, which is equal to what, your 36 plus your 41 minus of what, 25, and this will be equal to what, your y plus w, which is equal to what, your 52. And this is what you have to find. This is equal to what, your area, this is equal to what, this is equal to your area PLCM, और this is what you have to find, यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा गाइज, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विच इज 52। Question number 12. Question number 12 says the number of non-negative integer solution of the equations, and equation is what, 6x plus 4y plus z, which is equal to 200, and another equation is what, x plus y plus z is equals to 100, is option A is 3, option B is 5, and option C is 7, option D is infinite. So guys, option C is the correct answer. Option C is what, option C is 7. So देखते हैं हम कि किस तरीके से हम इस आंसर तक पहुंच पाएंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है दोस्तों, हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है हमारे पास 6x plus 4y plus z, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 200। एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास। वही हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे जो है x plus y plus z, विच इज इक्वल टू 100। ये दो इक्वेशंस दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को, यहाँ पर मुझे पता है एक्स वाई जेड जो है ये जो वैल्यूज है ये मेरी नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, तो यहाँ से मैं जेड की अगर इन्हें मैं ऐड कर दूं, इन्हें अपोजिट साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरी, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी जेड इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, मैं जेड को लिख सकती हूँ कि 100 माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है, which is greater than or equal to 0। और मैं क्या बोल सकती हूँ गाइज कि यहाँ पर अगर मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, मुझे मिल जाएगा यहाँ से 5x
यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3y विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 100। ये चारों वैल्यूज को मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट शुड आई गेट, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। यहाँ पर अब मैं पॉसिबल कंडीशंस ले रही हूँ, जैसे मैंने y को लिया, सपोज y अगर 0 रखा तो x क्या आ जाएगा मेरा, x यहाँ पे 20 आ जाएगा। अगर मैंने y को 5 रखा, ठीक है, सो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 17 आ जाएगी। अगर y को मैं रखती हूँ 10 सपोज, सो मेरा x क्या आ जाएगा, मेरा x आ जाएगा 14। अगर मैंने y को रखा 15, तब मेरा x क्या हो जाएगा, तब मेरा x हो जाएगा 11। If I put y is equal to 20, then my x will be 8. And if I'll put y is equal to 25, now my x will be 5. And if I'll put y is equals to 30, then my x will be what, my x will be 2. So here you can see here how many number of solutions are there here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 solutions are there. So you can say that here total solution is 7. Okay, so the question is what, that the number of non-negative integer solution of the equation 6x plus 4y plus z, which is equal to 200, and your second equation is what, x plus y plus z is equals to 100. So you have to find the number of non-negative integers. So here you can see that the total number of solution is 7. So your answer C is correct, that is option C, 7. Question number 13. Let n1 is equals to 2 की power 55 plus 1 and your n2 is equals to 165. Then option A is n1 and n2 are co-prime. Option B, the HCF of n1 and n2 is 55. Option C is what, HCF of n1 and n2 is 11. And option D is what, your HCF of n1 and n2 is 33. So guys, option D is the correct answer, which is HCF of n1 and n2 is 33. So let's see कि किस तरीके से हम इस सॉल्यूशन पे रीच करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। सो n1 जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है गाइस, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा n1 है विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर 55 plus 1. This is your n1 and your n2 is what, your n2 is 165. और you can say that अगर मैं इसके फैक्टर्स कर दूं तो क्या मिल जाएंगे मुझे फैक्टर्स, which is equal to 5 into 3 into 11 and which is equal to what, और मैं क्या लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ is equal to 5 into 33. लिखा जा सकता है ऐसे 5 into 33 इसको, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर मैं कंडीशन बताऊं कि यहाँ पर जो x की पावर n है प्लस मेरी जो y की पावर n है, ये जो वैल्यूज है ये डिविजिबल होगी किससे, x प्लस वाई से, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ये मेरे x प्लस वाई से डिविजिबल होगी। और मैं क्या बोल सकती हूँ और किससे डिविजिबल हो जाएगी कि ये वैल्यू मेरी जब n जो है मेरा n, व्हेन माय n इज व्हाट, n मेरा अगर ऑड नंबर हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या दे दी कि जो मेरा n है वो एक क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो मेरा अगर n यहाँ पर 55 है सपोज, विच इज हेयर, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे n क्या है 55 है, तो मैं n1 को क्या लिखूंगी, मेरा n1 हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर 55 प्लस दिस 1, ओके, एंड विच इज डिविजिबल बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। 1 की पावर भी 55 में लिख सकती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ कि ये क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाय, क्या लिखा जा सकता है इसे कि 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, इससे डिविजिबल होगा, ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 2 की पावर 5 पे होल पावर 11, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। और इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ 1 पे पावर 11 लिख सकती हूँ डायरेक्टली, 1 पे पावर 5 और 11 ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 1 पे पावर 5 और 11 ऐसा लिखा जा सकता है इसको। और मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा जो n1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाउ मेरा n1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 32, बिकॉज 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, तो ये 32 पे पावर 11 हो गई प्लस मेरी 1 पे पावर 11 हो गई, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय what,
which is divisible by 32 plus 1 which is equal to 33. ठीक है, ये मेरे 32 plus 1 33 के बराबर हो जाएगा. Now your HCF of this N1 and N2 is what? यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मेरा N1 और N2 का, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? N1 N2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर equal to 33. And here your option D is correct. Your HCF of N1 and N2 is 33. I hope question का solution clear हो गया होगा guys आपको. Question number 14. Let L greater than 0 be a real number. C denotes a circle with a circumference L and T denotes a triangle with a perimeter L. Then A. Option A is what? Given any positive real number alpha, we can choose C and T as above such that the ratio of area C upon area T is greater than alpha. Option B. Given any positive real number alpha, we can choose our C and T as above such that the ratio of area of C upon area T is less than alpha. Option C is what? Given any C and T as above the ratio, area of C upon area of T is independent of C and T. And for option D, there exists any real number A and B such that for any circle C and triangle T is above, we must have A is less than area C upon area T less than B, or the condition is this area C upon area T is greater than A or less than B. Now we have circle parameter. We can see that circle perimeter is equal to what? Is equal to your L, and which is equal to your C, and your triangle perimeter is also L, and which denotes T. Okay, so here we have to start with the solution part. So for same perimeters of the circle area is greater than the triangle's area, or we can say that the area of circle is greater than area of triangle. If we have same circumference or if we have same perimeter, circle's area is always greater than the area of triangle, or we can say that the area of C upon area of this T is always greater than 1. So your alpha, which is your constant alpha, is greater than 1. So here you can say that option A is the correct answer. Okay, so your option A is the correct answer. Question number 15. The number of 3-digit numbers A, B, C such that the arithmetic mean of B and C and the square of their geometric mean are equal. So the option is option A 9, option B 18, option C 36 and option D 54. So guys, answer B is correct, which is option number B 18. सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन पे ध्यान देंगे हम लोग कि क्या कंडीशन हमें गिवन है. हमें गिवन है कि हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है जिसमें हमें क्या दे रखा है, जो मेरा अरिथमेटिक मीन है वो और जो स्क्वायर ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन है वो दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है. तो अरिथमेटिक मीन को आप क्या लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन मेरा हो जाएगा यहाँ पर b प्लस सी अपॉन 2, और जो मेरा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि जो अरिथमेटिक मीन है और जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है वो क्या है, आपस में इक्वल है. तो ये मेरी एक कंडीशन थी. ठीक है, यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो B प्लस सी है वो क्या हो जाएगा, मेरा 2BC हो जाएगा. ये मैं बोल सकती हूँ. यहाँ पर अब मैं C के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखूंगी तो मेरे को B के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी. सो अगर मैंने C को सपोज करो 0 रखा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे B प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो मेरी B की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से B की वैल्यू 0 आ गई. नाउ अगर मैं C को 1 रखती हूँ तो B प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2B, और यहाँ से मेरी B की वैल्यू आ जाएगी 1. अगर मैं C को 2 रखा, ठीक है,
सी को 2 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा b प्लस 2 विच इज इक्वल टू योर 4b, एंड यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसी तरीके से मैं सिमिलरली सी की वैल्यूज रखती जाऊंगी, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब मैं सी को 0 रख रही हूँ तभी मुझे बी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और सी को 1 रखने पे बी मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ से मैंने क्या देखा कि जब सी को 0 रखा तभी मुझे बी 0 मिला, और सी 1 रखा तभी मुझे बी क्या मिला, 1 मिला। सो ए की जो वैल्यूज है वो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे ए की वैल्यूज मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये मेरे पास ए है, और मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे कि ये मेरा जो 9 इंटू 2 इंटू 1 है वो क्या हो जाएगा कि इफ कंडीशन क्या लग जाएगी यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि इफ कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे कि मेरा जो अगर b इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कि अगर मेरा b इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1 पे मेरा b 0 पे c 0 आ रहा है और b 1 पे c 1 आ रहा है, ये मेरी एक कंडीशन हो गई। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया मेरा, इस तरीके से टोटल क्या हो गया, टोटल 9 इंटू 2 विच इज वॉट, 9 इंटू 2 इज 18। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18। Question number 61, part 2. Let A, B, C, D be the distinct real numbers such that AB are the roots of equation x square minus 5cx minus 6d equals to 0, and your CD are the roots of equation x square minus 5ax minus 6b equals to 0. Then your B plus D is equal to what? Option A is 180, option B is 162, option C is 144, and option D is 126. So guys, option C is the correct answer. So let's see, option C पे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। ऑप्शन सी किस तरीके से करेक्ट हुआ है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो गिवन थिंग है वो हमें क्या दे रखी है, दो इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके हमें एक रियल रूट्स भी दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो हमारे पास जो दो इक्वेशन दे रखी है वो दोस्तों क्या दे रखी है, दो इक्वेशन वो हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या दे रखी है इक्वेशन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5cx माइनस का 6d इक्वल्स टू 0। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर a और b, दो रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। नेक्स्ट एक और इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 5ax माइनस का 6b इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके इक्वेशन के रूट्स हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे, c और d। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह a पुट कर दूं, ठीक है, अगर इस इक्वेशन में x की जगह a पुट कर दूं तो व्हाट शुड आई गेट हियर, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 5ax माइनस का 6d इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं x की जगह c पुट कर दूं इस दूसरी इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, c स्क्वायर माइनस 5ac, दिस विल बी ac, ओके, एंड माइनस का 6b इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। सो आई विल ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। व्हाट शुड आई गेट, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 10ac माइनस का 6 इन ब्रैकेट b प्लस d विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं इसको अगर a प्लस सी का होल स्क्वायर फ्रेम करूँ तो व्हाट शुड आई गेट, यहाँ पर मुझे इसको बनाना पड़ेगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे माइनस का 12ac करना पड़ेगा एंड माइनस का 6b प्लस d विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और मैं क्या बोल सकती हूँ गाइज, यहाँ पर मेरा हो जाएगा कि ये जो a प्लस b है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 5c के, और मैं बात कर सकती हूँ मेरा जो c प्लस d है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा 5a के। ठीक है, अगर मैं इनको अगेन ऐड कर दूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो व्हाट शुड आई गेट, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट में a प्लस सी,
और अगर मैं यहाँ से a और c को सब्ट्रैक्ट कर दूं राइट हैंड साइड में ले जाके, तो व्हाट शुड आई गेट हेयर, b प्लस g की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 4 इंटू a प्लस c, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. आफ्टर दैट now my AB is equals to what? Now my AB is equal to minus का 6D and your CD is equal to what? Minus का 6B. If I multiply both the equations, so what should I get? AB, CD will be equal to what? 36BD. And this BD will be cancelled out by this BD, and my AC is equal to what? My AC is equal to 36. Okay. Now this is my equation number 5, and if I'll put this equation 5 in my equation number 3, so what should I get? This is equation 3, a plus c का whole square minus का 12ac minus का 6 b plus d equals to 0. So in place of this ac what should I get? यहाँ पर मैं लिख दूंगी a plus c का whole square minus 12, ac की जगह मैं multiply कर दूंगी 36 minus 6 b plus d equals to 0. और मैं इसे क्या लिख सकती हूँ गाइज, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 36 माइनस इस b प्लस जी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, b प्लस जी मेरा किसके इक्वल था, 4 इंटू a प्लस सी के इक्वल था, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 4 a प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई. अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, और यहाँ पर मैं a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 36, और मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 24 a प्लस सी, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 36 a प्लस सी प्लस 12 a प्लस सी विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहां से अगर मैं a प्लस सी कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं a प्लस सी को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ a प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया अगर, ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a प्लस सी इन ब्रैकेट a प्लस सी माइनस का 36 और माइनस का 12. ठीक है, इन ब्रैकेट आई हैव टू राइट इन ब्रैकेट a प्लस सी माइनस का 36, ओके, विच इज इक्वल टू 0. My two factors are what now? I have to write my a plus c plus this 12, this is plus 12, and here I have write a plus c minus का 36 equals to 0. So my one factor is a plus c which is equal to minus का 12, and my a plus c which is equal to 36. Okay. So here I can say that this a plus c will be equal to what? This b plus d will be equal to 4 into a plus c, which is equal to what? 4 into 36, and which is equal to your 144. So your option C is the correct answer. Question number 62. Let S is equals to 1, 2, 3 up to 100. Suppose B and C are chosen at random from the set of S. So the probability that 4x square plus bx plus c has equal roots is, option A is 0.001, option B is 0.004, and option C is 0.007, and option D is 0.01. So guys, here option A is the correct answer, which is 0.001. So let's begin with the question. सो देखते हैं हम किस तरीके से इस सॉल्यूशन को करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमें क्या दे रखा है कि s की वैल्यू जो हमें सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर मेरी जो s की वैल्यू है उसमें क्या सेट मिल रहा है मुझे, यहाँ पर 1 2 3 दिस विल बी इक्वल टू अप टू 100. ठीक है, ये 100 तक जा रहा है मेरा. उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कंडीशन दे रखे हैं, यहाँ पे वो क्या कंडीशन है कि मेरा जो d है वो क्या दे रखा है 0, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी किसके बराबर होता है मेरा, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, दिस विल बी प्लस 4x स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0. इक्वल रूट से तो मेरा डी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 6c इक्वल्स टू 0. और my b square is equals to 16c. My b square will be equal to what? 16c.
यहाँ पर मैं बी और सी की कुछ पॉसिबल वैल्यूज ले सकती हूँ, तो बी और सी की अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज लेना चालू करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं बी को 4 रखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये सी मेरा 1 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे इक्वेशंस को इक्वल करना है। अगर मैंने 8 रखा तो ये 4 हो जाएगा। और इस तरीके से मैं ऐसे 10 पॉसिबिलिटीज बना लूंगी, तो लास्ट पॉसिबिलिटी मेरी क्या बनेगी, अगर मैंने बी को 40 रखा तो ये मेरे पास हो जाएगा 100। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 10 पॉसिबिलिटीज आ गई मेरी, ठीक है, ये मेरी 10 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि मेरे जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे गाइज, वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वो क्या हो जाएंगे मेरे 100 इंटू 100, ठीक है, ये मेरे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर बी एंड सी रेंडम वैल्यूज फॉर सेट एस। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी गाइज, यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पर गाइज, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ माई प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट दैट इज 100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 0.001। सो हियर गाइज मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.001। Question number 63. Let n be the set of positive integers for all n is belongs to natural number. So let your function fn is equals to n plus 1 whole power 1 by 3 minus n per power 1 by 3, and your a function is defined as in bracket n belongs to capital N, which is defined as f n plus 1 less than 1 upon 3 n plus 1 by power 2 by 3 which is less than fn. Then your a is equals to n is your first option. Option B is a is a finite set. Option C is the complement of a in n is a non-empty but finite. Option D is a and its complement in n are both infinite. So guys, here option A is the correct answer, which is a equals to n. So let's begin with the question. So first start with the given condition. So given condition is what, if I'll write कि given condition में मुझे function दे रखा है fn, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, my fn is equals to, ठीक है, क्या लिखा जा सकता है मेरे fn को, n plus 1 पे पार n plus 1 पे पार 1 by 3 माइनस n पे पार 1 by 3, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है दोस्तों। और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, आप जानते हैं इसे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, ये a है ये b मान लिया जाए तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। आगे देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इसे इस तरीके से रिप्लेस कर दूंगी। यहाँ पर अब मैं अपने फंक्शन को fn को डिफाइन करूं अगर, तो fn क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन दस n प्लस 1 पे होल पावर 2 by 3 प्लस यार ए बी की जगह में क्या लिख सकती हूँ n इंटू एन प्लस 1, इस पे होल पावर आ जाएगी गाइज 1 by 3 एंड दिस प्लस b स्क्वायर मीन्स दिस विल बी इक्वल टू n की पावर 2 by 3। इस तरीके से हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर देंगे ना। यहाँ पर देखिए ये मेरा डिनोमिनेटर है, ये वैल्यूज को मैं कंपेयर कर सकती हूँ 1 by d के फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैं आगे क्या कर सकती हूँ, आगे से कैसे लिखा जा सकता है, ये मेरा इक्वल हो जाएगा d विच इज लेस देन और ग्रेटर देन, किस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे, यहाँ इसे लिखा जा सकता है d ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 3 n पे पावर 2 by 3 which is less than 3 n plus 1 पे पावर 2 by 3। और अगर इस वैल्यू को मैं रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करने पे गाइज मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 अपॉन d, ठीक है, which is greater than 1 upon 3 n पे पावर 2 by 3 which is greater than 1 upon 3 n plus 1 पे पावर 2 by 3, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो मेरा एक्चुअल फंक्शन है fn जो था मेरा, वो fn क्या हो जाएगा, fn हो जाएगा ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 n प्लस 1 पे पावर 2 by 3। और अगर मैं इस n को यहाँ पर n को n प्लस 1 से, यहाँ पे n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो इस फंक्शन में, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, fn प्लस 1 विच इज लेस देन 1 अपॉन 3 n प्लस 1
पे पावर 2/3 विच इज लेस देन माई फंक्शन एफ एन. ठीक है, सो नाउ ये जो कंडीशन मेरी निकल के आई है गाइज, ये जो कंडीशन है ये मेरी सारी नेचुरल वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. और अगर ये सारी नेचुरल वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू है तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इक्वल्स टू एन. Question number 64. A prime number p is called special if there exists prime p1, p2, p3, p4 such that your condition is what? P is equals to p1 plus p2 is equals to p3 minus p4. So the number of special primes is option A 0, option B 1, option C more than 1 but finite, option D infinite. So guys, here option B is the correct answer which is 1. So let's see कि किस तरीके से इस आंसर तक हम रीच करते हैं. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. कंडीशन देखते हैं सबसे पहले. गिवन कंडीशन हमें क्या दे रखी है, तो जो गिवन कंडीशन है गाइज वो हमें दे रखी है यहाँ पर. देखिए मुझे दे रखा है कि P1, P2 एंड P3 एंड P4 ये क्या है, आपके प्राइम नंबर्स है. इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या दे रखे हैं आपको, प्राइम नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है, आफ्टर दैट एक कंडीशन हमें गिवन है. वो कंडीशन क्या दे रखी है कि दैट इज जो कंडीशन है वो है आपके P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू P3 माइनस P4. ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. तो ये भी आपके दो प्राइम नंबर्स है और ये भी आपके प्राइम नंबर्स है. तो ये पॉसिबल कब होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं क्या बोलूं कि जो कंडीशन है मेरी, ठीक है, वो क्या हो जाए, अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 कर दूं और ये मेरे पास ये भी क्या हो जाए, ये 2 आ जाए. यानी क्या कहना चाहती हूँ मैं, यहाँ पर P जो है वो क्या हो जाए मेरा 2 प्लस P2 हो जाए. ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँ कि P3 माइनस ये 2 हो जाए. तभी मेरी जो कंडीशन है कि ये दोनों प्राइम होने की ये सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, नाउ ओनली पॉसिबल वैल्यूज फॉर P2 एंड P3. अब मुझे क्या चाहिए, इसकी P2 की वैल्यू चाहिए पॉसिबल वैल्यू और P3 की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए. तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज है ये क्या हो सकती है कि ये जो वैल्यू है ये क्या रहे, ये एक प्राइम नंबर है. तो P2 की जगह में क्या लिख सकते हो गाइज, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो 2 प्लस 3 5 हो गया, दैट इज अ प्राइम नंबर. और यहाँ पर अगर मैं 7 रख दूं तो 7 माइनस 2 इज अगेन 5, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज इक्वल भी करनी है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 की जगह मेरे पास आ जाएगा 3 और P3 की जगह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7. नाउ ओनली पॉसिबल वैल्यूज फॉर P2 एंड P3 आर 3 and 7 respectively. So only possible one possible event is there. So ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. कितने पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे आपके, 1. सो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ गाइज, यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो P2 की वैल्यू ये 3 हो जाएगी और P3 की वैल्यू 7 हो जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65. लेट ABC be a triangle in which AB equals to BC and let X be a point on AB such that your AX ratio XB equals to AB ratio AX. If your AC equals to AX, then the measure of angle ABC is equal to what? This you have to find. So option A is 18 degree, option B is 36 degree, option C is 54 degree and option D is 72 degree. So guys, here option B is the correct answer which is 36 degree. So let's see, let's begin with the question. और लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन कंडीशन हमें क्या दे रखी है. AX रेशियो XB. सो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, माई AX अपॉन XB विच इज इक्वल टू व्हाट, योर AB अपॉन व्हाट, AB अपॉन AX is given to you. This is the given condition and this can be written as like this also. This can be written as AX plus XB equals to AB upon AX plus AB. This can be written as like this. Okay, now if I make a triangle ABC, so what can I say here? This is your triangle, this is A, this is B and this is C. Fine. So this is your X point and this is will be equal to this side. Okay.
Now after that, what should I write? If I just multiply the given term, so I'll get here ax square plus ax into ab, which is equal to what? Which is equal to my ab whole square. Okay. Or what should I can write? My ax square plus twice of this ax multiply with ab by 2, because we have to make it as a perfect square, प्लस ए बी बाई 2 को ही हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसके स्क्वायर को हाफ करके इसको ऐड कर देंगे बोथ दी साइड्स. सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये ए बी बाई 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. फाइन. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए वो हम क्या लिख सकते हैं. जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए एक्स प्लस ए बी बाई 2. ठीक है, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये एक. ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, योर 5/4 माई ए बी स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. सो यहां से मेरी जो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से मैं अपने ए एक्स को क्या लिख सकती हूँ गाइज, ए एक्स मेरा लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माई रूट 5/2 ए बी माइनस ऑफ ए बी बाई 2. दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. ठीक है, यहां से अगर मैं कंक्लूड करूं कि अगर मैं मेरे ए बी को सपोज करो, सो लेट ए बी को अगर मैं ए मान लूं और ए बी जो है वो मेरा क्या है, ए बी मेरा बी सी के बराबर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू अगेन माई वैल्यू ए. सो आगे देखिए कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. योर ए सी is equal to what, your AC is equal to AX and which is equal to what in your bracket, root 5 minus 1 upon 2 into 8. This can be written it like this. Okay, now for triangle or for angle ABC, in triangle ABC, angle ABC की अगर मैं बात करूंगा इसको, मेरा जो cos B हो जाएगा, cos B वो क्या हो जाएगा, उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस माई बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर. ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू ए बी इंटू योर वॉट इंटू बी सी. इस तरीके से मैं ये कॉस बी की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ. ठीक है, और कॉस बी को इनकी सबकी वैल्यूज मुझे पता है तो मैं इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दूंगी. सो योर कॉस बी कैन बी रिटन एज माई कॉस बी इज इक्वल टू ए बी की जगह यहाँ पे आ जाएगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपॉन 2 इंटू ए इंटू ए. ठीक है, इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ गाइज. अगर मैं आगे से आगे सॉल्व करूं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माय cos b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं स्क्वायर को ओपन कर दूंगी तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2 ए स्क्वायर. ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा 2 ए का स्क्वायर. ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. आगे देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम वैल्यूज को रख के. ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए को अगर 2 माना तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, माइनस ब्रैकेट में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 5. ओके, एंड दिस विल बी अपॉन 2 इंटू अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 डालिए तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन दिस वैल्यू 8. ठीक है, और इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं 2 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4. इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ.
यहाँ पर देखिए जो cos b की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है मेरे 1 प्लस √5/4 के। यहाँ से मैं b एंगल निकाल सकती हूँ गाइज। मेरा b जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यूज आ जाएगी वो 36 डिग्री आ जाएगी, और b की वैल्यू आ गई तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो ABC है, ABC एंगल है वो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। So here my option B is the correct answer. Okay.